Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on News X, making a start with breaking news top of the hour. Prime Minister Narendra Modi has arrived to meet Gen X team of BJP. This will be his first meeting with the new office bearers of the Bharatiya Janata Party post their induction in Nitin Nabin's new team. That list, of course, had come out a few days ago. Today, the BJP president has been sharing meetings with his new office bearers, the Gen X team of the Bharatiya Janata Party, Manohar Kesari. It's been a day-long session of meetings for the new team of Nitin Nabin, BJP president. It's a Gen X for the party, and now they are going to get Modi Mantra. Prime Minister Narendra Modi has also reached there now. He will be addressing them shortly, Manohar. देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और जो नए पदाधिकारी हैं, जो नितिन नवीन की नई टीम है, उनके साथ मुलाकात करेंगे, अपना नमो मंत्र उन तमाम नए पदाधिकारियों को देंगे ताकि आगे वो संगठन के लिए काम कर सके, देश के लिए काम कर सके, विकसित भारत 2047 के लिए काम कर सकते, युवाओं के लिए जो अभियान है बीजेपी का, उस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके, युवाओं से जुड़ सके। ये सारे संदेश जो है नरेंद्र मोदी उन नए पदाधिकारियों को देंगे। साथ ही साथ आज सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी रहा। सुबह 10 बजे जो नए पदाधिकारी हैं, जो नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं, मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो सभी जो है सो एक परिचय बैठक में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता नितिन नवीन ने की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष और नई टीम की उनकी अध्यक्षता में पहली बैठक हुई, जिसमें वंदे मातरम को लेकर के एक प्रस्ताव पास किया गया कि किस तरह से उसे जनता के बीच ले जाना है, युवाओं के बीच ले जाना है, क्योंकि उस प्रस्ताव में साफ तौर से लिखा हुआ है कि जिस तरह से कांग्रेस ने CWC में वंदे मातरम के 2 स्टांजा गाने को लेकर के प्रस्ताव पारित किया है, उसके खिलाफ बीजेपी है। और नितिन नवीन ने अपने एक्स पोस्ट में भी लिखा कि इसके खिलाफ जो है सो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जो संविधान के दायरे में है। और साथ ही साथ संबित पात्रा ने भी कहा कि ये कांग्रेस जो है वो संविधान को मानने वाले नहीं हैं, वो नफरत फैलाते हैं और ये इस तरह से 1937 के बाद जो है एक तरह से वंदे मातरम का ही विभाजन की नीति जो उस समय नेहरू जी ने अपनाई थी। लगता है मनोहर से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, मगर बड़ी खबर इस वक्त की यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। Well, the BJP's new team now faces, of course, its first big organizational test. Prime Minister Narendra Modi's meeting and address to the new office bearers is expected to set the tone for the road ahead. At the heart of the meeting, a 5-point agenda. First, the next-gen BJP reset. With a new generation of leaders taking on key organizational responsibilities, the Bharatiya Janata Party is looking to strengthen its organizational structure, build a new leadership pipeline, and keep the party's cadre connected to its core ideology. Second, Modi's 25 years in public service. The BJP is expected to plan nationwide events marking Prime Minister Modi's 25 years in public life. The focus taking his political journey, governance record and Seva message to the party's cadre and the public. Third, Vande Mataram campaign. The party plans to take the national song to the ground, with a nationwide campaign expected to become both a cultural and political outreach exercise. Fourth, the 2027 state elections. The new team's first electoral tests are already on the horizon. Organizational preparations, cadre mobilizations and state-specific strategies will be crucial as BJP looks to consolidate its position ahead of the next round of assembly battles. And fifth, the 2029 Lok Sabha roadmap. Beyond the immediate state polls, a bigger target is 2029. The new BJP team will have to build the organizational and electoral machine that can carry the party into the next generation general elections. From a next-gen reset to the 2029 roadmap, this is a meeting that could define the BJP's political and organizational priorities for the years ahead. Manohar, a lot on the cards for today, many points on the agenda. What all has been covered through the day, from Vande Mataram campaign to Prime Minister Modi's 25-year service record campaign to, of course, the 2027
battle in the assembly polls, then of course 2029. For now, this connect with the youth. A lot on the cards, Manohar, for today, isn't it? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और मैं अभी उसी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं जहां इस तरह की आज बैठकें हुई, वर्कशॉप हुई। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये आप देखिए, ये बीजेपी हेडक्वार्टर का एक्सटेंशन की बिल्डिंग है और यहाँ पर दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेवा समर्पण के 25 साल, इससे जुड़ा हुआ एक यहाँ वर्कशॉप हुआ, एक लंबी दौर की बैठक हुई जिसमें सभी राज्यों के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, बीजेपी के नए पदाधिकारी समेत कई आला नेता जो है सो उसमें शामिल हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। मकसद साफ था कि नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे कर रहे हैं सरकारी पद के रूप में, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर अगर आप देखें तो ऐसे में सेवा अभियान, सेवा संकल्प अभियान नाम दिया गया है, वो चलाया जाएगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और वैसे में 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक ये पूरा 1 महीने का कार्यक्रम होगा। जनता के बीच आएंगे, युवाओं से जुड़ेंगे, युवाओं को बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में उनके लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, किस तरह की स्कीमें हैं, ये एक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आगामी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में हैं उसे लेकर के भी चर्चा हुई है कि कैसे हम और संगठन को मजबूत करें, आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है इस वक्त। A huge crowd of leaders has arrived at the BJP headquarters on Prime Minister's arrival. Amongst them are senior leaders like Muralidhar Mahal. He is of course Minister in the Union Cabinet as well. Let's in fact listen into what's happening there. सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। पुण्यातील युवा शक्तीने हे दाखवून दिलं की आम्ही देशभक्त युवक, राष्ट्रभक्त युवक। Well, we are getting news regarding Prime Minister Modi's meeting with the new BJP team. We are learning that the photo op of Prime Minister Modi with the new team is done and Prime Minister Modi will be addressing the party cadres anytime now. Manohar Kesri is live with us on this story. Manohar, Prime Minister Modi, of course, has reached there. I think he's going to be taking a photograph with the entire new team of Nitin Nabins. After that, he will be addressing them. Manohar, is this a completely closed door address? देखिए बिल्कुल बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने के बाद उनका स्वागत नितिन नवीन और बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं उन्होंने किया है और साथ ही साथ बीजेपी हेडक्वार्टर के प्रांगण में एक फ़ोटो सेशन की व्यवस्था की गई थी जिसमें पीछे होर्डिंग लगी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन की और उसमें नितिन नवीन के टीम के जो नए पदाधिकारी हैं वो साथ में नज़र आ रहे हैं। फ़ोटो सेशन हुआ है और उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री उन सबसे 1 बाय 1 मिलेंगे और हो सकता है कि अपना वो संदेश भी उन लोगों को दे कि आगे पार्टी को और कैसे मजबूत करना है। जी, हमारे सूत्र आपको क्या बता रहे हैं कि मोदी मंत्र आज का क्या हो सकता है? बहुत ही अहम समय है ये पार्टी के लिए, संगठन के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शक एवं आवश्यक है उनके लिए इस वक्त। क्या मोदी मंत्र होगा आज का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो संदेश होगा, खास संदेश होगा नए दायित्व के संगठन के पदाधिकारियों के लिए, इसमें क्या कुछ खास होने वाला है आज? देखिए बिल्कुल आज नरेंद्र मोदी का मंत्र साफ है, युवा शक्ति। युवाओं को किस तरह से समझाना है,
देश की बात बताना है, विकसित भारत 2047 के संकल्प के लिए हमने क्या कदम उठाया है इसके बारे में बताना है। क्योंकि ये पूरी टीम अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन की पूरी टीम में ज़्यादातर यंगस्टर हैं, नए चेहरों को शामिल किया गया है और वो पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की योजनाओं को ज़मीन पे उतारना है। लोगों के अंदर जो गलतफहमियां हैं, खास करके अगर देखें कि राहुल गांधी जिस तरह से जन जी को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं, आज भी पुणे में हैं, तो ऐसी स्थिति में कैसे उन्हें काउंटर करना है, किस तरह से लोगों के बीच में जाना है, इन सब चीज़ों को लेकर के युवा शक्ति मंत्र प्रधानमंत्री जो हैं सो उन तमाम नए पदाधिकारियों को देने वाले हैं। जी बिल्कुल। और मनोहर, अगर हम बात करें ये समय के लिए, तो बीजेपी के लिए बेहद आवश्यक ये समय है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उनके तेवर बढ़ रहे हैं। हमने देखा ये पूरे मॉनसून सत्र में विपक्ष के बहुत आक्रोशित तेवर थे और विपक्ष ने कहीं ना कहीं काफ़ी एग्रेसिव खेला है, खास करके छात्र प्रदर्शन के पश्चात, खास करके केंद्र में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के पश्चात। आने वाला समय अहम है बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड और यूपी में दोबारा सरकार बनाना। पंजाब में भी बीजेपी ने काफ़ी दावे किए हैं कि इस बार काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट होने वाला है और बीजेपी का ग्राफ बहुत बढ़ेगा। इस वजह से ये जो समय है बेहद अहम है पार्टी के लिए, संगठन के लिए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, पार्टी और संगठन और सरकार तीनों के लिए जो है सो अलग अलग लेवल पे बेहद अहम है। अगर पार्टी एक संगठित होकर के, मजबूत होकर के सरकार की योजनाओं को अगर आगे नहीं बढ़ाती तो इसका असर देखने को मिलेगा। लगातार आप देखिए कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद प्रधानमंत्री खुद इंस्टा में आते हैं और इंस्टा में जन जी के साथ जो है सो संवाद करते हैं, उन्हें मैसेज देते हैं कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। और उसके बाद जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है और लगातार विपक्ष की ओर से, राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से लगातार जो है सो प्रोटेस्ट किया जाता है, वो मांग की जाती है और इसकी वजह से पूरा मानसून सत्र जो है सो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तो ऐसे में सरकार ये चाह रही है कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो संकल्प है, उसको कैसे युवाओं तक पहुंचाएं, किस तरह से दूसरी पार्टियां उन्हें भ्रमित कर रही है, झूठी अफवाहें फैला रही हैं, उसे कैसे काटा जाए। साथ ही साथ वो उन लोगों को एक एक करके जिम्मेवारी देगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से एक विशेष कमेटी गठित कर दी गई है युवाओं के आउटरीच को लेकर के, और जिसकी जिम्मेवारी नितिन नवीन, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी को दी गई है। साथ ही साथ अभियान में जो गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, उन्हें और ओपी चौधरी को शामिल किया गया है, ताकि एक गांव-गांव तक, हर एक कॉर्नर तक, हर एक नुक्कड़ तक जो है सो ये संवाद पहुंचे और युवा शक्ति को जोड़ा जा सके। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल आपसे, क्या युवाओं के प्रति भी कोई संदेश हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? आज हमने देखा था कि जेन जी के संग आरएसएस का संवाद बढ़ गया है। जेन जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं उनसे बातचीत कर रहे हैं इंस्टाग्राम के जरिए। अच्छा, इस वक्त बड़ी तस्वीर आ रही है बीजेपी हेडक्वार्टर से। द फोटो ऑप with the new team of Nitin Nabin is currently underway. It's just concluded, in fact. You can see there, that is the new team of BJP President Nitin Nabin. Those are the newly inducted vice presidents, general secretaries and other post holders in the BJP's new team. And the Prime Minister has just, of course, clicked a photo with them. These are the visuals coming in, Manohar. A photo op first with the new team. खास एक फोटो खींचा गया है। ये जो लम्हा है, ये जो संदेश है, उससे पहले एक खास तस्वीर ली गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी टीम के साथ। अ बिग फोटो ऑप एंड देन दिस विल बी फॉलोड बाय द एड्रेस। व्हाट कुड द एड्रेस कंटेन? क्या युवाओं के लिए भी खास संदेश उसमें होगा? देखिए बिल्कुल ये तस्वीर काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि नितिन नवीन
आज अपने नए पदाधिकारियों के साथ न मुलाकात की बल्कि उनके साथ बैठक की है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनसे मिलने वह बीजेपी मुख्यालय आए और उनसे मुलाकात करने के बाद ये फ़ोटो सेशन हुआ है, जिसमें तमाम जो नए पदाधिकारी हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, अलग अलग मोर्चा के अध्यक्ष और सेल के को कन्वेनर और तमाम नए पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आज प्रधानमंत्री जो है सो उन युवाओं को भी एक मैसेज देंगे, उन्हें कहेंगे कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जिस तरह से हम लोग जुड़ रहे हैं, वो भी जुड़ें। और याद होगा कि कल भी प्रधानमंत्री ने स्पेस सेक्टर से जुड़े हुए सीईओ से बैठक की थी, उनसे बातचीत की, कई युवाओं से बातचीत की कि किस तरह से युवाओं को उनसे जोड़ा जाए, हम आगे निकल सकें, एक आत्मनिर्भर बन सकें। तो कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसे लेकर के युवाओं को जोड़ना है, उनके अंदर जो गलतफहमियां पैदा हो गई है उसे कैसे दूर किया जाए, ये सारे मैसेज हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और हमने ये भी देखा था कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को भी कहा है कि इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो जाएं। क्या ये भी पदाधिकारी को भी बता सकते हैं? सोशल मीडिया संदेश भी हो सकता है, सोशल मीडिया में कैसे सक्रिय हुआ जाए और खास करके इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम पर युवाओं से कैसे कनेक्ट किया जाए, साधा जाए? देखिए बिल्कुल सरकार की ओर से पहले भी कहा जा चुका है और इसे लेकर के प्रधानमंत्री ने रिव्यू भी किया था कि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, कि किस तरह से वो उसमें चीज़ों को डाल रहे हैं या किस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के कैबिनेट में भी चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री नंबर 1 पे आए थे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तमाम जो नए पदाधिकारी हैं उनको भी ये संदेश दे सकते हैं कि वो सोशल मीडिया में खास करके इंस्टा इन सब में जुड़ें। जो पार्टी की बात है, जो सरकार की बात है, वो इंस्टा में करें, रिएक्ट करें और जो पार्टी लाइन है उसे लेकर के जनता के बीच में जाएं और सोशल मीडिया में बात रखें। क्योंकि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया में हमने देखा कि कई ऐसे डीपफेक वीडियो हैं या फिर गलत प्रसार किया जा रहा है, उनसे कैसे काउंटर करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर के वो संदेश दे सकते हैं। चलिए, इस खबर पे आप नजर बना के रखें, हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया मनोहर केसरी हमारे संग जुड़ने के